The receptive sensational mind is the nervous mental basis of the affections. It receives mentally the impacts of things and gives to them the responses of mental pleasure and pain, which are the starting point of the duality of emotional likings and dislikings. All the heart's emotions have a corresponding nervous mental accompaniment, accompaniment, accompaniment. And we often find that when the heart is freed of any will to the duality, there still survives a root of disturbance of nervous mind or a memory in physical mind, which falls more and more away to a quite physical character, the more it is repelled by the will in the buddhi. It becomes finally a mere suggestion from outside to which the nervous cords of the mind still occasionally respond until a complete purity liberates them into the same luminous universality of delight which the pure heart already possesses. Because, Yami? इट्स मोर लाइक वो जो होता है ना, जैसे कोई, जैसे भूत और मॉन्स्टर की स्टोरीज, जैसे भूत स्पेशली गोस्ट स्टोरीज में जैसे दिखाते हैं ना कि इफ जैसे कोई औरत या whatever आदमी या पर्सन लिविंग देयर हैज ऑलवेज बीन maybe drinking tea at this time in this house तो फिर वो उसके मरने के बाद भी if the condition is such, तो वो काफी टाइम तक ऐसा लगता है कि वो still coming to have tea, and है ना, उसका जैसे एक impression it is left because of that whatever इच्छा कह लो या मोमेंटम कह लो. So what he is sharing that पहली बात तो हम जीते ऐसे हैं कि लाइकिंग पैटर्न्स एंड डिसलाइकिंग पैटर्न्स, है ना, और उसके साथ एसोसिएटेड एक फिजिकल नर्वस सेंसेशन होती है. तो जब हार्ट ने अभी मना करना शुरू कर दिया, इट्स बिकमिंग फ्री ऑफ दोज पैटर्न्स ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, इट इज नॉट दैट द जो अंडर करंट, वो जो सेंसेशन है वो एकदम से चली जाएगी, गायब हो जाएगी, है ना. वो अभी भी रिपल्स आएंगे, बट देन एटलीस्ट यू आर नॉट एंगेजिंग इन देम, दे आर जस्ट देयर एंड वन जस्ट काइंड ऑफ, है ना, मतलब उसको इतनी तवज्जो नहीं देते. सो धीरे 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 इट जस्ट प्यूरिफाइज इट सेल्फ एंड इवन द रिपल गोज अवे, जो मोमेंटम की वजह से अभी भी है. मतलब आई थिंक दैट्स वाई जैसे पेन की बात करते हैं कि पेन तो होना ही होना है. अब चाहे वो अच्छी चीजों का तुम पेन ले लो कि भैया अच्छा है, कोई मतलब हैबिट अगर जो बुरी डली हुई है वो छूट रही है, तो वो जाते जाते तो दर्द देगी जब तुम उस हैबिट में नहीं इंडल्ज कर पा रहे. तो वो इच्छा आ रही है, तो वो जो इच्छा आ रही है, द सेंसेशन दैट वांट्स टू रिपीट इटसेल्फ, वो उस पुराने मोमेंटम का रिपल है जिसको मैंने बहुत ज्यादा एंटरटेन किया है अभी तक. बट अब वो रिपल तो है, बट मैं एंटरटेन नहीं कर रही, तो दर्द होता है ना. And it is a good kind of a pain because that is what is going to make me independent, that I am not basing my delight and joy on इच्छा पूर्ति, है ना, बिना उसके अनिच्छा, अनिच्छा कहते हैं ना, जैसे बिना इच्छा के आप ठीक हो,
you're okay. Mm. ये lot of times one also realize sees कि some memories are there, that if something happens, some thought comes or some flash comes of how something was done before, and yet today it holds no value, or it's not true. मतलब if something had given you solace and it's etched in your memory क्योंकि this gives me solace, it hasn't been giving maybe solace for 5 years, 10 years, and yet that is in your memory as a memory of solace. So this also has to be like, I've been doing this kind of when it comes and I'm able to see it's again there, to just see कि it has no ground and it's just a floating thing which is just floating. मैंने पकड़ ली तो पकड़ ली, मतलब zero value in today's time. So it's strange how much of that, with your ghosts की बात, what you were doing, right? That how we are led by ghosts and we don't even realize the ghost still has the power to puppet us for some time. If and in the same thing, what example that you were sharing, a friend's brother. हाँ, क्या कह रहे थे? Yeah, I was saying a friend had lost her brother, like young brother, and the friend's younger daughter was able to see him. Matlab she was, I don't know, 1 and 2 maybe at that time, and she kept seeing him. Like, say the day he passed, if he would come in their room at 9 p.m. to ask for a specific medicine, like he would come to take supplements, the girl would say कि Chacha is asking, like कि वो medicine दे दो पापा. And they're like wondering what, and then they looked at the time, same time पे the girl could see. So how those patterns are not just for the body, right? Like, it doesn't leave you, and obviously after a while it did, but it's very strange how deep they go if we let them, right? Like, unless we don't let them. Actually, that's the correct way of saying. Otherwise, तो जाएंगे ही. Yeah, yeah, that's all. बिल्कुल. हम्म. श्री अरविंदो कहते हैं कि वाइटल बीइंग जो है ना, दैट्स आल्सो, आई थिंक जो आप बता रहे थे, दैट्स आल्सो द वाइटल बीइंग ऑफ द पर्सन, है ना? और श्री अरविंदो टॉक्स की इतनी आसानी से ये नहीं छूटने वाले, मतलब वन हैज टू जस्ट कम टू टर्म्स विद इट, बिकॉज इट्स लाइक देयर इज अ क्लेम ऑन योर लाइफ that so far I have used this palace, whatever, the body, for my purposes, and how so easily can I leave? बट ये है कि वन हैज टू डिनाई द क्लेम अगेन एंड अगेन कि अभी तक जो था वो अलग चीज थी, बट अब द लॉज हैव चेंज्ड एज इफ, है ना? सो यू स्टॉप एंटरटेनिंग, you stop seeing them, the patterns, as your own patterns. You see them as intruders, you know? And slowly, 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 when not entertained, not entertained, not entertained, not entertained, then they, what you were sharing, lose their grip. तो इतनी जल्दी, मतलब ये तो मान के चलना चाहिए कि दे विल रिमेन, है ना? तो वन ऑल्सो हैज, फिर आसान, फिर ठीक लगता है, फिर इतना शॉकिंग नहीं लगता कि ओ अभी तक है, अभी तक है, अभी हाँ भाई रहेगा, डाल लो आदत. बट ये है कि आपने उसके कुछ डिक्टेट्स सुनने की जरूरत नहीं है आपको, ये जो कि अभी तक सुने उनका कुछ फायदा रहा होगा, है ना? वही जो in olden times maybe it was giving us something, following those patterns and making those patterns for ourselves, but now it is more like a burden, it's not giving anything but more pain and pain and pain every time. तो वही जो जत्सुनमा कहती हैं, to create more skillful patterns rather than unskillful patterns that are continuing.
I think अगर active pain ना भी दे रहा है and yet it's just maintaining that hold. हाँ। है ना, जैसे वही जो you're talking about कि who rules? हम्म। I rule. है ना, मतलब that rule is being maintained हम्म। कि change ना हो बिल्कुल। कहीं बना रहे। हाँ। अब ये जो हम सावित्री का पढ़ रहे थे ना, उसमें भी वो कहती है कि फेट का लॉ चेंज हो, मेरी स्पिरिट की विल तो, है ना, वो नहीं चेंज होने वाली। तो आई थिंक जब डिसीजन आपका राइट होता है, व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम अ राइट पॉइज, देन along with that there is a greater strength also, a diviner strength, जो कि यूजुअली हमारे पास नहीं होती, क्योंकि हमारे वो पॉइज ठीक नहीं होती हमारी। है ना? जब पॉइज ठीक है तो फिर मतलब डरने की क्या जरूरत है? जो गलत है वो चेंज होगा, है ना, सत्यमेव जयते, ट्रुथ ट्रायम्फ्स। फिर जब आप ट्रुथ की तरफ खड़े हो तो फिर बाकी चीजें चेंज होंगी, आप थोड़ी ना चेंज होगे। इन दैट सेंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिजिडिटी, बट यू नो इन द सेंस दैट यू हैव टेकन अ ट्रू स्टैंड, अ राइट स्टैंड। अब जैसे मुझे बाहर जाना है, मैं बाहर ले जाने के लिए एक स्टैंड ले रही हूँ, नो दैट दैट इज अ स्टैंड व्हिच कैन वीकन एनी टाइम, है ना, कि मैं लड़ तो लूंगी, झगड़ झगड़ लूंगी उसके लिए, बट उसमें कोई उतनी स्टैंडिंग नहीं है, यू नो। एंड इफ इट्स अ स्टैंड व्हिच इज अ मे बी मोर लाइक बियॉन्ड माई सेल्फ, है ना, सेल्फलेस कुछ काम है जो मुझे पता है कि मुझे करना ही है, मतलब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, आई हैव टू डू इट। तो उसके लिए फिर करेज ही करेज है, स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है। जैसे भगत सिंह के पास स्ट्रेंथ है, तो हमारे काम छोटे होते हैं तो स्ट्रेंथ भी कम होती है, काम बड़े होते हैं तो। और बड़ा मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई देश को बचाना है, जस्ट इतना बड़ा कि बीइंग ट्रू एंड ऑथेंटिक टू योर ओन इनर कॉलिंग, दैट इज गुड एनफ बड़ा। ऊपर ऊपर से You छोटा know लग what is सकता है। fascinating is that अब हम जैसे भगत सिंह का नाम लेते हैं, कह रहे हाँ। हमें कौन सा दे, बट आई वंडर कि उस टाइम पे जो उनकी वो थी स्टेट, हम्म। उनको ये थोड़ा लगता होगा कि हम कुछ बड़ा, है ना, मतलब एज इन दे वर, एब्सोल्युटली। है बिल्कुल। ना, रियली बिल्कुल। लोकल बॉयज एंड जस्ट बिल्कुल। ये बस जिद कर रहे हैं और मतलब जो हो देख लेंगे, है ना, तो हाँ। अब बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल उस समय वो बड़ा नहीं लगता। सही कह रहे या हो। उस समय तो इनफैक्ट वो कह रहा है कि मतलब मेरे पास चॉइस नहीं है, हाँ वहां ना हाँ जाने की मेरे पास चॉइस नहीं है। हाँ ना, हाँ ये हुई ना हार्ट्स की कॉलिंग, व्हाट वी से, नो, हाँ हार्ट्स कॉलिंग। हाँ हमारे पास तो हमको लगता है कि अरे बैठूं या खड़ा हूं, अरे बैठूं या खड़ा हूं, मतलब इतनी वीकनेस में हम या स्टांस लेते हाँ हैं। हाँ रियली हार्डली कैन बी कॉल्ड यंग। या and I'm smiling at this, I'm sorry. It's Sonala ke Buddhu, but she's saying I'm serious and I'm smiling. Yeah. बट वही है, आई थिंक सबका जैसे अपना काम है, मतलब सम पीपल आर गिवन दिस करेज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, है ना, कि उनके पास नहीं है चॉइस बट टू टेक अ स्टैंड। एंड सम ऑफ अस हैव टू कल्टिवेट इट इन दिस लाइफ, इन दिस वेरी लाइफ, टू बिगिन टू टेक अ स्टैंड एंड टू स्टैंड अप फॉर द राइट करेजियसली। एंड अगेन उसमें कुछ ऐसा बड़ा होते हुए दिखता नहीं है, बट आपको पता है कि आप ठीक कर रहे हो, यू आर ऑथेंटिक टू योर सेल्फ। Mm. आई सी दैट पर्सनली, आई डिड नेवर हैड टू थिंक अबाउट इट, है ना, मतलब मेरे को एज इफ कि एक ग्रांटेड मिल गया, अब वो क्यों मिला मुझे नहीं Mm. पता, बट मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मतलब अब चाहे मेरी मदर इन लॉ Mm. परेशान हो रही है, फादर इन लॉ परेशान हो रहे हैं, या घर वाले कह रहे हैं कि तू ये क्यों कर रही है, आई डोंट हैव अ Mm. चॉइस नॉट टू डू इट। Mm. तो वो मुझे एज इफ इट वाज जस्ट गिवन, बट नॉट फॉर ऑल, इट इज जस्ट गिवन, है ना, फॉर मतलब क्या हो सकता है इस जन्म में अब मुझे कल्टीवेट करना है कि नो, बहुत सहेलियां अपने आप को टॉर्चर करना, नाउ आई हैव टू बिगिन टेकिंग अ स्टैंड, एंड देन मे बी दैट कैरीज ऑन, आई डोंट नो, और मे बी द सोल चूजेस Mm. समथिंग एल्स। Mm. और ऊपर से ऐसा लगता है कि मतलब people can make an image, which I'm sure people do from time to time, which doesn't matter, कि मतलब एज इफ कि ये बंदा किसी का भी नहीं है क्या, बिकॉज यू आर जस्ट Yeah, yeah, वैल्यूइंग ट्रूथ। yeah, yeah.
है ना? हम्म, तो ये तो किसी का भी नहीं है, जैसे क्योंकि किसी का सगा हम तब बोलते हैं कि व्हेन इमोशनली सेंटिमेंटली यू आर स्टैंडिंग बाय, एंड हम्म, बीमार हो गए तो पूछने चले जाओ, ये सारी चीजें है yeah, ना। एंड व्हेन यू रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन दीज व्हाट वी से ऑर्डिनरी डे टू डे एक्टिविटीज, तो ऐसा लगता है कि ये तो किसी की भी नहीं रही, विच आई सी हम्म, कि, हम्म, बट मे बी इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडिंग। अब ऐसा नहीं है कि जब जरूरत होगी तो कहीं जाऊंगी नहीं, बट मतलब ये जो शोशा के लिए जाना है वहां पे मुझे पता है कि मुझे नहीं जाना है। हम्म, हम्म, it's frowned upon. It's yeah. हम्म। बट दैट बिकम्स वेरी इमेटीरियल, बिकॉज वो उसकी आपकी हार्ट की कॉल के सामने वो एक्चुअली में मक्खी मच्छर के बराबर है, कुछ नहीं है। Mm, जो मैं देखती हूँ ना कि नहीं है, और ऐसा नहीं है कि दैट यू आर टेकिंग अ स्टैंड एंड कभी नहीं करोगे, ऐसा भी कुछ वो एरोगेंस भी नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी भी है वहां पे, बट एक सर्टिट्यूड भी है, रादर देन रिजिडिटी आई शुड से, सर्टिट्यूड mm, of a path. And most of us, because we don't have certitude of a path, है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि वो बंदा बड़ा रिजिड mm, है ना, क्योंकि हमारा खुद का ही सर्टिट्यूड नहीं है, इधर हवा ले गई तो इधर चले गए, उधर हवा ले गई तो yeah. उधर चले गए। हम्म। Mm, और देखा जाए तो रिजिड बंदों ने ही कुछ करा है, इफ यू लुक बैक एट हिस्ट्री। मैं अपनी बात नहीं कर रही, mm, mm, मैं भगत सिंह की बात कर रही हूँ, है ना, कि पता yeah. है क्या करना है। Mm, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, है ना, पता है क्या करना yeah. है। Yeah. Mm, mm. In that book that you had shared, Golden Path, हाँ हाँ उसमें one of the sadhak, I don't remember now which one, he said कि वही जो that Baba who was supposed to be what Subhash Chandra Bose, he was also a devotee of Sri Aurobindo and he got me in touch with him. Did you reach that part? मैंने अभी कुछ दिन से पढ़ी नहीं है। हाँ मैंने भी आई अब तो वुड नॉट काफी हैव। दिन से नहीं पढ़ी बट उसमें भाई जो वो जापान के साथ में who was the person सुभाष चंद्र बोस ही थे ना जो हाँ हाँ हाँ, यस। है ना तो उसके बाद देयर इज दिस कंट्रोवर्सी थ्योरी राइट दैट ही नेवर डाइड ही एक्चुअली तो फिर ही हैड एक्चुअली उनके अकाउंट में यही है कि दैट पर्सन हु इज सेड टू बी हिम was a devotee of Sri Aurobindo. He was really influenced with them during the war. So then he renunciated. And then he had reached out to that particular sadhak and told him कि go to him. मतलब you are supposed to be there. हम्म। It's interesting कौन सी चीज कहाँ पे tie करी है not that it matters हम्म मतलब as such हम्म yet कि कोई चीज कहाँ सुनी and then there's a tie of Sri Aurobindo so it feels a bit ट्रू ट्रू। sparkly and या yeah. ट्रू। When you were sharing, this is so sad. Like you were saying कि क्या करना चाहते हो, है ना? Like you said, तुम्हें पता है क्या करना चाहते हो. And for a lot of us, it's like क्या करना चाहते हो, and the other is आप बताओ क्या करें, हम्म you know? And I think that shows हम्म कि why then the lives are, है हम्म ना? मतलब in the just to be, just to not stick your neck out, हम्म or just to let things be. हम्म यू हम्म जस्ट से कि हाँ हाँ आप बता दो वही कर हम्म लेंगे हम्म हम्म and it doesn't even feel that you're not even there. It doesn't feel that you are bowing your head to places where it doesn't need to be bowed. ट्रू। It just feels very natural. हम्म Yeah, yeah, yeah. हम्म। सो यस दीज घोस्ट्स। और यहाँ पे वो वाला भी आएगा ना जो शांति देवा वाला है, दैट फॉर अ मिलियन ऑफ Mm, लाइव्स यू हैव, है ना, वट एवर, हॉटी इंसोलेंस वाला जो उसका वर्स है, mm, so mm, that you have made me round and round and round, but now this time I am not going to listen to your haughty insolence. mm. Yeah, so it becomes finally a mere suggestion from outside, है ना, ऐसा लग रहा है कि वो बाहर से आ रही है, it is not my हाँ, true being. हाँ,
to which the nervous cords of the mind still occasionally respond, है ना. टाइम टू टाइम थोड़ा मूड खराब हो गया उसके आने से या कुछ, है ना, हल्का फुल्का बैलेंस बिगड़ गया, occasionally respond until a complete purity, कि हमारे बीइंग में एक भी पार्ट नहीं बचा जो उसके तार से मतलब छिड़ने से कुछ रेजोनेंस करे, है ना. तो दैट वुड बी कंप्लीट प्योरिटी. Complete purity liberates them into the same luminous universality of delight which the pure heart already possesses. कि पहले तो उसके थ्रू, उस पैटर्न के थ्रू मुझे डिलाइट मिलती थी, और अब स्लोली restraining myself or whatever, wanting to work upon myself, I have neglected, है ना, negated that pattern, that no, I am not going to follow your dictates. So slowly जब कुछ भी मेरे being में उससे resonate नहीं कर रहा है, and I have let it go completely, then I actually partake of that contentment which already was there. जो वो कहते हैं ना कबीर जी, तो वस्तु ठौर की ठौर, कि मतलब जो डिलाइट में बाहर ढूंढ रही थी, रिलेशनशिप्स में ढूंढ रही थी, या ना सिचुएशंस में ढूंढ रही थी, एक बार जब मैंने वो त्यागा, भागना दौड़ना पीछे पड़ना, कि ये कंटेंटमेंट तो अरे यहीं पे तो बैठी है, तो वस्तु ठौर की ठौर, दौड़ थके मन स्थिर भया. So it actually resonates with that couplet only, क्योंकि it says about that we come to that same luminous university of the delight which the pure heart already possesses. बस उसकी प्योरिटी क्योंकि नहीं थी, उसमें इम्प्योरिटीज थी, तो वो दिख नहीं रही था, उसका लश्चर नहीं दिख रहा था, शाइन नहीं दिख रही थी. ये उसको काफी लोग इसको बर्तन मांजने से भी रिलेट करते हैं, है ना. इट्स नॉट दैट यू गिव शाइन टू अ बर्तन, यू जस्ट रिमूव द रबिश. Savitri, the issue में second section maybe there are 3 lines which say that her mirror kind of was clean. There were no, like, either mist could not taint it, the thing could not do it, and hence the divine or the eternity could be reflected in her. जैसे अब कबीर जी says है ना कि मैंने त्यों की त्यों धर दी नहीं, right? So मतलब why this was clean so it could be reflected. So Savitri also yesterday I read those 3 reminded me of this Kabir Doha then के क्या लाइन है बताओ, लाइन क्या है, कुछ एक smeared डालो, हाँ smeared, हाँ issue, ये वाला unsmeared with the dust of our mortal atmosphere. हाँ ये 3 lines, हाँ yeah, this one, हाँ, brilliant glass, yes I remember. Earth's breath had failed to stain that brilliant glass. Unsmeared with the dust of our mortal atmosphere, it still reflected heaven's spiritual joy. Exactly. Yeah. Nice. मतलब जैसे अर्थ की सांस से ही गंदे हो जाते हैं. Yeah, imagine Poor that. earth. Yeah. Yeah, I also thought that. Yes. I'm yet to look into it, but I know this is not the right time. But what is this 6th line? Remember this? Which one was it? Yeah, opening in sympathy with happier stars. What was this referring to? Would you remember? हाँ, एक मिनट. Till then, no mournful line had barred this ray on the frail breast of this precarious earth, since her orbed sight in its breath-fastened house, opening in sympathy with happier stars where life is not exposed to sorrowful. I think related to जैसे मतलब जैसे मदर का चाइल्डहुड भी देखें, क्योंकि मदर का भी रेफरेंस है ना यहाँ पे. सी happiest stars because we are born under the influence of stars. I think it is also a reference to that. Exactly देखना पड़ेगा. Yeah, no, I had a feeling this sentence, opening to sympathy and happiest, मतलब
थोड़ा सा वो how it was like in one sentence didn't be कुछ कि इधर जा रहे हैं कि इधर जा रहे हैं, but हाँ, कि that's मतलब ऐसी हाँ ऐसी जो दिशा वगैरह भी, दिशा और दशा जैसे स्टार्स की कहते हैं, वो भी ऐसी थी कि इट्स लाइक वेयर लाइफ इज नॉट एक्सपोज टू सॉरोफुल चेंज। बट ओपनिंग इन सिंपैथी क्यों है? ओपनिंग इन सिंपैथी विद हैप्पियर स्टार्स, सो हैप्पियर स्टार्स के साथ उसका साझेदारी है ना, नॉट विद स्टार्स विच आर डार्कनिंग, है ना, एस्ट्रोलॉजी तो वाइज। एस्ट्रोलॉजी ओपनिंग वाइज इन सिंपैथी की क्या जरूरत है यहाँ पे? सिंपैथी से क्या मतलब है? since her orbed sight in its breath-fastened house, opening in sympathy with happier stars, where life is not exposed to sorrowful change, remembered beauty, death claimed, lids ignore, and wondered at this world of fragile forms carried on canvas strips of shimmering time. What appearance that I am getting, that बर्थ के जो स्टार्स वगैरह हैं, दे वर ऑल्सो इन सिंपथी इन द सेंस कि जैसे एक रेजोनेंस की है ना, इट्स नॉट ए डिस्कॉर्ड, ओके डिस्कॉर्ड इज नॉट ओके देयर। ओके अच्छा अच्छा, sympathy not in that sad way, हाँ but when we are feeling that हाँ, one, सिंपथी का, हाँ बिल्कुल, compassion, oneness वननेस, with oh wow, okay, I didn't अलाइनमेंट, हाँ हाँ, aspect मतलब of ब्रेथ फास्टेंड sympathy. हाउस तो ये हो गया कि जब से बॉडी ली, हाँ है ना। yeah. मुझे बस this thing wasn't हम्म fitting in for me, opening in हम्म sympathy, हम्म। because I took it as a negative thing, है ना अच्छा कि अच्छा, एक्चुअली यही है बेचारा ना इस सावित्री में, जो वो तभी इंग्लिश ऑफ हम्म, सावित्री इतनी काम, इट्स वेरी हम्म, हेल्पफुल, क्योंकि उसमें वो काफी बार वो रूट पे भी ले जाती हैं yeah, श्रद्धावान। तो yeah, अगर आप सिंपथी के रूट पे जाओगे अभी, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग लेयर्स ऑफ मीनिंग है, नॉट ओनली दैट सिंपथी दैट वी नो, ह्यूमन सिंपथी। हाँ, हाँ yeah. And it makes sense. मतलब if you just let that rigidity of a word हाँ just be open, हाँ हाँ, there is a oneness and sympathy. You know, there is बिल्कुल। this togetherness. You we were, yeah, nice. जैसे अब रिगार्ड है, Uh, अ, एक मिनट, ये देखो, इसमें जैसे ये है ना, एटिमोलॉजिकल देखेंगे इसका, ग्रीक mm, विद फीलिंग, है ना, मतलब उसके साथ है, उसका अलाइनमेंट है, फीलिंग इन कॉमन, ये देखो, फीलिंग इन कॉमन, है ना। तो वैसे भी जो हम यूज exactly. करते हैं, फीलिंग इन, जैसे आई एम हैविंग सिंपैथी, लेकिन सिंपैथी एम्पैथी जब हम थोड़ा हाँ, डिमार्केट कर देते हैं, तो हाँ, यहाँ पे है कि इट्स लाइक अ कॉमन रेजोनेंस विद yeah, हैप्पियर स्टार्स, yeah, हाँ, yeah, एफिनिटी yeah, बिटवीन सर्टेन थिंग्स। yeah, exactly. हाँ, के साथ में है. There's a togetherness. There is availability, feeling अब and जैसे रिगार्ड वर्ड है एक, तो हाँ, रिगार्डे, लैटिन रिगार्डे से जहां से ये आ रहा है, तो उसमें ये बताया गया है कि इट एक्चुअली मीन्स टू लुक, दैट आई रिगार्ड यू, आई लुक एट यू। तो yeah. सावित्री में बहुत बार श्री अरबिंदो रिगार्ड इसको यूज कर रहे हैं कि ही इज नॉट इवन लुकिंग, रिगार्डलेस आईज, दैट ही इज नॉट Oh, इवन लुकिंग एट यू। okay. स्टोन Nice. स्टिल रिगार्डलेस आईज, वो जो पेन वाला था ना, Yeah, yeah. गॉड लाइक पेन, वो हाँ, वाला। तो अच्छा है, इससे इंग्लिश भी काफी इंप्रूव होती है। yeah, yeah. क्या, एक मिनट, कहाँ चला गया वो? तो आगे देखते हैं इसमें। पढ़ोगे, खत्म कर लो। Hmm. You want to you read now नहीं, आप the पढ़ो, second? पढ़ो पढ़ो, कंटिन्यू। The active dynamic mind of impulse is the lower organ or channel of responsive action. Its deformation is a subjection to the suggestions of the impure emotional and sensational mentality and the desire of the prana
to impulses, to action dictated by grief, fear, hatred, desire, lust, craving, and the rest of the unquiet brood. Its right form of action is a pure dynamic force of strength, courage, temperamental power, not acting for itself or in obedience to the lower members, but as an impartial channel for the dictates of the pure intelligence and will or the supramental Purusha. When we have got rid of these deformations and cleared the mentality for these truer forms of action, the lower mentality is purified and ready for perfection. But that perfection depends on the possession of a purified and enlightened buddhi, for the buddhi is the chief power in the mental being and the chief mental instrument of the Purusha. तो अब नेक्स्ट यही है, प्यूरिफिकेशन ऑफ द बुद्धि. मतलब वो जो एक एक्शन है इमीडिएट है ना, जैसे टेम्परामेंटल पावर है ना, टेम्परामेंट मतलब एक थोड़ा सा उसमें फ्लूइडिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है ना, क्विकनेस है, एक्शन की क्विकनेस है. तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो चाहिए नहीं, वो चाहिए, अदरवाइज वी बिकम लैक्स एंड यू नो इनर्शिया, फुल ऑफ इनर्शिया, लेजी. बट उसकी जगह जो है वो जिसके डोमिनेंस में वो काम कर रहा है, वो मेंबर्स अभी गलत हैं. वो सब हैं ग्रीफ, फियर, हेट्रेड, डिजायर, लस्ट, क्रेविंग एंड द रेस्ट ऑफ द अनक्वाइट ब्रूड. वो याद आ गया मुझे, जो कबीर कहते हैं ना, कागज केरी नाव है, पानी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तिरू ये पांच कुसंगी संग. कि आप आगे बढ़ना जा रहे हो, वो कुसंगी आपको खींचे जा रहे पीछे की तरफ. व्हाट एन इमेज ना, अनक्वाइट ब्रूड, गलत संगत हो गई है. And the Kabir saying that, है ना, मतलब like how much more pain there is कि he wants to go और उसको भी वो पीछे पीछे है, मतलब ऐसा लगा कि मुझे खींच ले तो ठीक है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं है, जो जा रहा है उसको तो जाने दो. Yeah, but that's the point. Temperamental, it's coming from the word temperate. टेम्परामेंट, आई थिंक वन थिंग विच इज टेम्परामेंटल, जैसे जब हम यूजुअली यूज करते हैं कि वो बहुत टेम्परामेंटल है ना, तो बेसिकली बहुत इजीली अप एंड इजीली डाउन. Which is strange, right? Because temperate is balance. टेम्परेट इज अलग, टेम्परामेंट इज अलग. हाँ हाँ, मतलब and it gives the illusion of having the same, coming from the same हाँ thing. हाँ हाँ, हाँ देख सकते हैं इसको हाँ, कि कोई जो easily flare up हो जाता है ना, temperamental. हाँ. देखो पता नहीं क्या एग्जैक्टली क्या है इसमें. इन द सेंस ऑफ मूडी. Subject to changing and unpredictable emotional state. User unfriendly. नहीं अब देखो ना, मतलब इसका अगर हम वैसे देखें तो इसका तो बहुत यूज है ना. अब जैसे मेहर बाबा का वो जैसे हम डिस्कस करते हैं कि अभी बोला कि चलो बनाना शुरू करते हैं, है ना, वॉट एवर बिल्डिंग आश्रम जो भी बना रहे हैं, तो हम लग गए.
हाँ बाबा ने बोला है बनाते हैं, हाँ। अब एकदम से आज ऑर्डर आ गया कि नहीं बनाना, तो हम कहते हैं ठीक है नहीं बनाना। तो इसके लिए एक्चुअली mm, में टेम्परामेंटली तो चाहिए yeah, कि जो अगर आदेश आया तो कर लिया, और आदेश yeah, गया तो फिर चेंज कर लिया अपना, है ना। हम क्या होता है एक बार पैटर्न में घुस जाते तो हमको लगता है नहीं अरे अभी तो शुरू किया था अब क्यों बंद कर दे, yeah, है yeah, ना। तो टू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी, वाइडनेस एंड फ्लूइडिटी, है ना। अभी अभी कह रहे हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल, और लग रहा है कि भैया यही मेरा जीवन है, और अब अलीपुर जेल में पड़े हैं। कह रहे हैं कि नहीं वो तो छोड़ना है तुम्हें, अब तो कुछ और करना है ना। yeah, yeah, तो वही कि जैसे टेम्परामेंटल की अपनी एक जगह है, बट वो जब गलत जगह पे यूज हो रहा है तो फिर इट्स अ रॉन्ग यूज देयर, है ना। yeah. वैसे no, I wasn't aware and it's surprising. It's not even there in history. Whether not surprising, Sri Aurobindo was the first freedom fighter who had asked for पूर्ण स्वराज. मतलब जिनको हम पूरा वो देते हैं श्रेय, मतलब they actually were, they only were saying कि चलो सेटल कर लेते हैं, है ना, मतलब दे दो चाहे जैसा भी दे दो. मतलब how sad कि after years and years of fighting that वो फिर समझौते पे ही मिक्स खिचड़ी के तुम ही रहोगे बट कहने को हम हो जाएंगे और ये सब. And that's our state and it gives us, if I look at my life when I'm saying कि तुम ही बता दो वही कर लेते हैं, when I'm saying this ना, it gives me a sense कि हाँ मैं ही तो कर रही हूँ, बिकॉज मैंने तो बोला कि तुम बता दो, है ना. मतलब how puppeted I can be to perceive that this is my freedom. How strange is this? How strange. मतलब अचंभा लगता है जब ऐसी मूवमेंट्स दिखती हैं similar to this कि या मतलब not even asking for complete freedom and he was the first one. Yeah. And then lot of ये सारे जो youngsters थे जो लड़ हम्म बड़ रहे थे, हम्म वो भी तो फिर सब यही कहते थे कि पूर्ण या चाहिए पूर्ण चाहिए. बिल्कुल। अदरवाइज तो पता नहीं अभी भी वैसे भी करा भी क्या अंडर दी नहीं आप देखो ना, डायनेस्टी. अब ये दिस इज व्हाट मोमेंटम, है ना। जैसे हम मोमेंटम की बात करते हैं, ब्रिटिशर्स दे गेव whatever changes they did in India, है ना, they are अभी तक we are carrying them actually Yeah, as burdens because हाँ, they are not yeah, serving us, है ना। yeah, yeah, गुरुकुल सिस्टम खत्म हो गया, है ना, ब्रिटिश एजुकेशन फॉलो कर रहे हैं, एंड और वो भी किस प्राइड के साथ भी से वो ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड, और ब्रिटिश yeah, कैम्ब्रिज yeah, वाला स्कूल बोर्ड है, yeah, कैम्ब्रिज वाला yeah, बोर्ड है ना, मतलब yeah, इतना yeah, प्राइड के साथ, एंड वी मतलब आई फील इट्स सो सॉरोफुल दैट yeah. इफ आई मतलब आई फील पर्सनली दैट मतलब इफ नॉट रिकॉग्नाइजिंग इंडियाज रिचनेस, Mm, आप mm, क्या बच्चे के साथ कर सकते हो और कहाँ आप उसको प्राउड, यू नो, इन प्राउड यू वेयर डू यू पुट हिम, yeah, कि जॉब मिलेगी, मतलब क्वेश्चन ही नहीं करते कि ये जॉब के लिए पैदा हुए हैं क्या, मतलब क्वेश्चन ही नहीं करते, uh, है ना, yeah, क्योंकि वो सारा सिस्टम पूरा एक ब्रेन वॉश हुआ पड़ा है हमारा, yeah, है ना, वेस्टर्न से जो इतना ब्रेन वॉश हुआ है ना, कि पढ़ाई क्यों करनी है, कॉलेज जाना है, कॉलेज क्यों जाना है, डिग्री नहीं, डिग्री क्यों लेनी है, क्योंकि जॉब मिले, जॉब मिले अच्छा पैसा, है ना, मतलब इसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। और जबकि मतलब लुक एट अवर हेरिटेज, no, the full of rishis and scholars and pandits and what not, है ना, yeah. seers। इस पे भी बहुत फर्क पड़ा होगा ना, जैसे आई थिंक और बेसिकली द मेजोरिटी वांटेड, I think Sardar Patel to be the first prime minister or something, and then because of, I mean, he was the one who was grounded, है ना, अच्छा। and he had all the, मतलब जब ये प्राइम मिनिस्टर की बात हुई थी, हम्म firstly they say ना कि नेहरू and Jinnah they started fighting, so again the separation had to be कि दोनों को बनाना है. And the majority wanted, say, Sardar Patel, if I'm not mistaken, मतलब somebody very grounded to its roots ओ of India to be the first prime minister. वाओ who had said कि he had said कि एक अब हम population भी हमें कम करनी है, ये भी हमें करना है. He was the one who had united the whole of India, who had gone to king and said कि we want one nation. ओ तो ये उनको attributed है, but just because Nehru was getting angry
And Gandhi had that thing कि अरे हम्म अरे तुम गुस्सा मत ना हो, तो he हम्म would be. हम्म So imagine कि if a prime minister who would have come, who was actually ग्राउंडेड यस grounded, he could have just plainly rejected all this, है ना, कि now that we are not under the अंडर rule, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस या सारी चीजें अब in the trash. सही कह रहे But because the other person was totally influenced too, right? Having affairs with the wives of the Britishers and all. I don't know how much अच्छा you आई डोंट know. नो Lot of that is there. हम्म Lord, yeah, let me not get into detail. तो वो और क्या करेगा, मतलब है ना? वेस्टर्न अंग्रेजी इन्फ्लुएंस ज्यादा था उनके था full on था. हम्म And there was a lot of pride in it. हम्म एक तो स्किन को देख के ऐसे हम पागल हो जाते हैं ना विद इंडिया आई थिंक इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम Yeah, कि yeah. काले को हम जबकि शाम मतलब शाम वर्ण के कृष्ण जी शाम के हो गए हाँ, मतलब exactly, yeah, और गोरों के पीछे exactly. हम ऐसे पड़ जाते हैं हाँ, है ना कि वो गोरा हाँ, गोरा है ना एक्चुअली अवर yeah, लैंग्वेज यू वुड सी yeah, yeah, our actually disposition changes in front of a foreigner and a yeah. local Indian fellow Yeah, yeah, very yeah. easily Yeah, I've seen that. Hmm. बिल्कुल. और plus, how deep it goes. Hmm. When I was graduating, my sister had visited with my nephew who was not even three then, Hmm. Hmm. 3 year old, less than three. When we went to the supermarket, he whispered in his mama's ears, कि Mama, can you also buy me a cream from this country which will make me fair? Really? Is less than My a 3 year God, old my God. whispering in mama's ears, वो वाली क्रीम ले लो जो गोरा बना दे. Yeah, yeah, yeah. मतलब it's just like how much it feels. बिल्कुल. Hmm. Yeah. और देखा जाए तो जैसे मतलब जो तगड़े लोग रहे हैं इंडियंस रूटेड है ना वो Yeah. जैसे जय जवान जय किसान वाले और ये Yeah. कौन थे शास्त्री भी थे है ना मतलब दे एक्चुअली लुक्ड लाइक पीपल हु हैव Yeah. एक फिजिकल Yeah. कैरेक्टर Yeah. स्किन भी टेंटेड है पूरी Yeah. टैंड स्किन है Yeah. हम्म, And इसी में ना I forgot in हाँ, यहाँ पे I had met somebody who's a very big artist, like Kathak dancer and stuff there. हम्म, And her daughter, she went to India. She's still in India. She went for a 6 months just to get to know the country. And I हम्म, think it's been 6 years and she hasn't come back. And he says, like the mother says, the daughter is so frustrated with the Indian thing. She says कि जो art है, हम्म, जो richness of art है, an average Indian dancer, for example, is performing so beautifully. हम्म, And yet the center keeps inviting foreigners हम्म, and advertising as if, oh my God, who's coming? And when या you look what they are doing, she said, कि my heart pains. या या कि मेरी मतलब उसी स्कूल की average person would be much more in ट्रू ट्रू beauty and grace ट्रू than the person who's invited. But this tag हम्म of क्योंकि आई he's a थिंक वो जो photo. गया नहीं है ना एक वो मोमेंटम आया था हाँ, जो ब्रिटिशर्स के yeah, चापलूसी करने का जूते चाटने mm, का वो अभी तक गया नहीं है तो वो मुझे लगता है इट्स अ मोमेंटम दैट वी आर कैरिंग टू बी लाइक है टू द फॉरेनर्स yeah, 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 इट्स अ yeah. मोमेंटम व्हिच हैज टू गो अवे सूनर लेटर बट सी आर्ट में तो यू कैन सी, है ना, मतलब द स्किल्स द ब्यूटी, उसमें भी वो नाम चला रहे कि वो उधर से आ रहे जी, कनाडा से आ रहे हैं या यूएस हाँ से आ रहे या हैं, तो ही इज आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल उसी में हमारे सुपीरियोरिटी है. इवन इन ऑरोविल ना, हम्म like I've heard kinds ki this is really frustrating, like for हम्म some people, how much the Indian हम्म is still be wanting to be pleasing and subservient. I'm using strong words, I don't know how much to use, हम्म to a regular person, an Orwellian equivalent to him, and हम्म yet having हम्म outside rules. हम्म Like it's हम्म as if कि वो जो inherent गुलामी है, हम्म वो ही सुपीरियर, हम्म वो हमारे अंदर ही कहीं अंदर है पे. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो इट हैज टू गो अवे या ट्रू वी आर कैरिंग इट और कोई अगर पूछे तो हम बोलेंगे ना ना
हाँ बिल्कुल भी नहीं, एग्जैक्टली या हाँ, दैट्स द वर्स्ट पार्ट या मतलब एंड मी टू मतलब मतलब वही जैसे जो होता है ना, there's something that are being carried in the genes and it has to be looked and taken out. या इसकी जरूरत है ही नहीं, है, मतलब दिस इज जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। कि वो चल रहा है, बस चल रहा है, हाँ, उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो ये जो नॉन कॉम्प्रोमाइज की आप बात कर रहे थे ना, हम्म। अ, कि पूर्ण स्वराज ही चाहिए, उससे कम हम्म। में नहीं मानेंगे। तो ये दिस हम्म। रिमाइंडेड मी ऑफ ये सावित्री में हमने पढ़ी थी ना यस्टरडे ओनली, ये वाला, मतलब अशुपतिज योगा, हम्म। है ना, हाउ या कि अब वो नहीं मानेगा अब नहीं, समथिंग। हाँ, वो उसको स्कैंटी हाँ। बार्गेन नहीं चाहिए, हाँ। है ना। द इमॉर्टल्स प्राइड रिफ्यूज्ड द डूम टू लिव अ माइजर ऑफ द स्कैंटी बार्गेन मेड बिटवीन अवर लिटिलनेसेस एंड बाउंडेड होप्स। मतलब चाहिए भी तो अच्छा इतना सा दे दो बस। हाँ। है ना, एंड द कंपैशनेट इन्फिनिट्यूड। तो वही है, मतलब एंड इधर भी हम देखें, मतलब इवन इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इफ वी सी, मतलब वी सी दैट ही डजंट स्टॉप इंटरमीडिएटली कि चलो इतना मिल जाए, है ना। वो उसको पूरा परफेक्शन अगर चाहिए भी तो इंटीग्रल परफेक्शन चाहिए, एक एक पार्ट ऑफ द बीइंग शुड बी परफेक्टेड इन डिवाइन लाइट। मतलब अब जो डिजायर की हम बात करते हैं, जैसे उस दिन हम श्री अरबिंदो कह रहे थे ना कि डिजायर को और एस्पिरेशन को जैसे अलग अलग वर्ड होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने मांगना बंद कर देना है। तो मांगो तो फिर जब सही चीज मांग रहे हो तो पूरी मांगो, मतलब आधी अधूरी नहीं, है ना। कि फ्रीडम भी मांगते हैं, अच्छा मम्मी मैं हफ्ते में एक दिन हुआ हूँ, है ना, ऐसे हम मांगते हैं रियली, मतलब हाउ वी फ्रूटलेसली सेल अवर ओन सेल्फ। और फिर बहुत खुश होते हैं कि परमिशन मिल हाँ, गई एक दिन की, इट्स लाइक ब्लिस। हाँ, कि देखो मेरी मम्मी जी ने ना मुझे अलाउ किया कि मैं हाँ हाँ। एक दिन तो जरूर जा सकती हूँ, है ना, हाउ नाइस ऑफ हर। वेट। हम्म। हम्म। या तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वही है ना, हर चीज की अपनी जगह, तो ये नहीं है कि अब जैसे मांगने की बात करें कि ओके डोंट बेग डोंट वॉट एवर, तो उसको फिर आप एक रूल बना लिया कि है नहीं मैं तो मांगूंगा ही नहीं। नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे, वॉट एवर। तो जब सही जगह पे मांगा तो फिर पूरा ले लिया, है ना, कि आधे से काम नहीं हमारा बनने वाला। यू नो दैट अगेन दैट लाइन कि तुम्हारी चालाकी तुम्हें ले डूबेगी, हम्म। एवरी टाइम इट शोज मी मोर कि कैसे है ना, जैसे अब अपने में मैं चालाकी कर रही हूँ कि मैं एक दिन मांग रही हूँ, हाँ, हाँ, और कितना मतलब इतनी सैड चालाकी है वो कि हाँ, मेरे को वो भी नहीं पता कि मैं कितना मतलब मांगने की जरूरत ही नहीं है, मैं हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब इट्स जस्ट मतलब नॉट टू बॉगल्स मी। क्वेश्चन दैट प्रीमाइस इन माय माइंड हाँ। दैट एज इफ आई बिलोंग टू समबडी, माय हाँ। टाइम एंड माय हाँ। लाइफ बिलोंग्स या टू या समबडी, है ना। वो क्वेश्चन ही या नहीं किया, मतलब उसको तो या तुमने एक वो ले लिया कि नोटेड, हाँ ये तो है ही, यू नो, आई डू या बिलोंग टू यू। या उसको क्वेश्चन ही नहीं, और फिर जब उसको हम ट्रुथ मांग रहे हैं, उसको बेसिस मान रहे हैं, तो फिर हाँ। ऐसा लगता है हाँ हाँ हाँ। देखो कितने दयावान है, हमें हाँ। एक दिन दिया जाने के हम्म। लिए, हम्म। है ना। Yeah, yeah. I remember कि after Soham was born, I don't know when he was 2 or something. Finally, one day I just took the car and I left and I was like, मुझे दिन हफ्ते की एक छुट्टी चाहिए था, इसलिए हम्म, महीने की मुझे याद भी नहीं है, हम्म, हफ्ता ही था कि one day off. हम्म, And I was expecting a lot of revolt हम्म, and there was none. And how happy I हम्म, was कि oh my God कि I actually am getting this, मतलब I can actually do whatever I want, मतलब हम्म, ना। हम्म, और अब मुझे उसकी वो दिख रही है या सैडनेस, बिकॉज अब तो बहुत वो दिखा था कि वो वाओ मतलब यू मस्ट बी किडिंग मी, दिस इज हैपनिंग। अपने आप को इतना सस्ते में बेचते हैं हम, बहुत सस्ते में बेचते हैं मोस्ट ऑफ अस, और खुश होते हैं वो सस्ते में बेच बेच के। बिक गए कुछ तो दाम मिला।
Yeah. Wow. Amazing. अब जैसे मदर कहती हैं आई बिलोंग टू नो वन, नो कंट्री, नो नेशन, नथिंग, है ना, नो बडी। तो दैट इज सम, लाइक, है ना, स्पिरिट, Mm. करेज ऑफ स्पिरिट। Yeah. और वही जो हम बात कर रहे थे कि फिर लोग ये भी बोल सकते हैं कि अरे तू तो किसी की भी नहीं है, किसी की भी Um, सगी नहीं है। तो yeah. एंड दैट इज ट्रू एक्चुअली, है ना। Um,